السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معي حتى تسكنه وسكنه. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وبنيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اچھا میں وہ سوچتی تھی ہم ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بتی چلی گئی ہے نا تو پتہ نہیں کتنا ہم آگے جا پائیں گے. ہم ایک کام کرتے ہیں آج ہم تجوید پڑھتے ہیں باقی جو ہمارا علاج آ گئی. چلے ہاں چلے باقی جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اگر بتی ہوگی تو پھر ہم کریں گے. آج ہم تجوید میں آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہتی ہوں اگر آپ مجھے سب بتائیے گا کہ میں اب تجوید شروع کرنے والی ہوں آج سے ہم کریں گے. نمبر 1 میں وہ کروں گی وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے, جو لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم آج میں وہ حروف کروں گی. پھر اس کے بعد ہم وہ کریں گے کہ وہ حروف جو لکھے نہیں جاتے لیکن پڑھے جاتے. پھر اس کے بعد ہم کریں گے حروف شمسی اور حروف قمری. اوکے, قمری. پھر اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ ہوگا ہمارے پاس احکام میم. احکام میم میں کہتے ہیں نا ادغام, پھر وہی اظہار اور یہ سب ہوتا ہے. 4 اس میں ہوتے ہیں. پھر ہم اس کے بعد 5واں کریں گے احکام نون. وہی اس میں احکام نون میں نا سب آ جاتے ہیں, یہاں میم ہے اور نون یہ سب آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو چھٹا ہمارا ہوگا وہ ہوگا احکام وقف. اللہ کیا لائٹ تنگ کر رہی ہے آج. احکام وقف. یہاں تک ہم جب کریں گے نا یہ ہماری جو تجوید ہو جائے گی یہ ایسی تجوید ہو جائے گی کہ اگر ہمیں یہاں تک تجوید آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اچھے سے کر لیا ہے. اس کا مطلب اب ہم قرآن اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. باقی اگر ہمیں قاعدے قانون زیادہ نہ بھی آئے نا تو بھی پرابلم نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو ہمارے ہیں یہ ہم نے کرنے ہیں ماہ رمضان سے پہلے. ماہ رمضان سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہاں تک جب ہم پہنچ گئے تو پھر ہمارے لیے باقی جو چیزیں ہوں گی وہ آسان ہو جائیں گی. چلے آج ہم آتے ہیں وہ حروف جو لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. وہ کون سے حروف ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. سب سے پہلے میں اس کو مٹاتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا واو یا اور الف, یہ کبھی کبھی حمزہ کی کرسی بنتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا واو کے اوپر اس طرح لکھا ہوتا ہے, یا کے اوپر اس طرح لکھا ہوتا ہے اور الف کے اوپر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. جہاں پر بھی واو اور یا اور الف کے اوپر آپ کو ایک حمزہ نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ واو الف اور یا جو ہے یہاں یہ لکھے تو جا رہے ہیں لیکن پڑھے نہیں جا رہے. تو یہاں پر جہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مومن, ہم کہتے ہیں یوں لکھتے ہیں نا مومن. آپ نے دیکھا ہوگا ایک حمزہ جو ہوتا ہے وہ واو کے اوپر لکھ دیتے ہیں مومن نون. آپ اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ انجم ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہاں ہم اس کو مومن پڑھیں گے. اگر دیکھا جائے تو اصل میں یہ ہوتا ہے مومن ہو جاتا ہے نا مومن. اگر
यहाँ पर वाव को पढ़ा जाए और इसके ऊपर हमजा ना हो तो हो जाता है मुंह में नून, मुंह में नून हो जाता है, मुंह में नून। लेकिन क्योंकि हमजा यहाँ पर आया है और हमें हमजा पढ़ना है, यहाँ पर वाव जो है वो हमजा की कुर्सी है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे मो में नून। तो यहाँ पर एक जगह यहाँ ये आ जाती है कि जहाँ पर वाव या और अलिफ जो है वो हमजा की कुर्सी होते हैं। दूसरी जगह पर जब जो अल्फाज, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है, नंबर 1 हो गया कि हमजा की कुर्सी, हम यूं कहेंगे कि जहाँ पर भी हमजा की कुर्सी होते हैं। नंबर दो वो अल्फाज जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, जैसे हमारे पास है अल्फे मद्दी, हाँ अल्फे मद्दी। जैसे हम अल्फे मद्दी में आपने देखा कि अल्फे मद्दी में हम क्या करते हैं, यर जा ऐसे लिखते हैं ना, यरजा। यहाँ हम लिखते हैं सलातुन, आपने देखा सलातुन, यरजा सलातुन। फिर हम जैसे लिखते हैं ज़कात, कभी भी हम इसको ज़कावात नहीं पढ़ेंगे या सलावात नहीं पढ़ेंगे। या तुजज़ा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है तुजज़ा, हाँ। जैसे यह आपने देखा होगा यह एक या को हमने किया, एक या को हमने नहीं पढ़ा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हरूफ होते हैं। नंबर वन वाव, या और अलिफ जब हमजा की कुर्सी करार पाते हैं तो उस वक्त वाव, या और हमजा पढ़े नहीं जाते। नंबर 2, जब वो अल्फे मद्दी आता है और अल्फे मद्दी के साथ वाव आता है और या आती है, और वो अल्फे मद्दी जो है वो वाव और या के ऊपर करार पाते हैं, तो इस सूरत में भी हम क्या करते हैं, उस अल्फे मद्दी को पढ़ते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये अल्फे मद्दी होता है, जैसे या है, वाव है, हम उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी नंबर 2 पॉइंट हो गए कि वो अल्फाज जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जा रहे। तो यहाँ या लिखी जा रही है लेकिन पढ़ी नहीं जा रही, वाव लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। अगर देखा जाए तो देखें, आप एक नोट करिएगा कि ये जो अलिफ है वो वाव के ऊपर नहीं है, बल्कि वाव से पहले जो लफ्ज़ है उसके ऊपर है। ज़कात भी इसी तरीके से, और फिर तज्ज़ा भी इसी, तज्ज़ा तो साफ या के ऊपर आ रहा है, और यर्ज़ा भी या के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये अल्फाज जो हैं वो लिखे तो जा रहे हैं लेकिन पढ़े नहीं जा रहे। जैसे ऊला में हम कहते हैं ऊली, अगर देखा जाए तो ये ऊली है, हम यूँ लिखते हैं ऊला। ये बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज हैं जो लिखे तो जाएंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरा पॉइंट, जहाँ पर वो अल्फाज जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। मैं जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है और एक दफ़ा मैं कर भी चुकी हूँ। नंबर 3 वो अल्फाज जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। अच्छा, वो जो मैंने किया था ना, उसमें मैं आप हमज़ा वस्ल और हमज़ा क़त इसको भी जोड़ दीजिएगा कि हमज़ा वस्ल, हाँ मैं भूल गई काफ़ी चीज़ें। अज़मत आप नोट करिएगा, फिर मुझे आप याद दिलाइएगा। हमज़ा वस्ल भी हमको करना है और इल्तिक़ाए साकिनैन भी हमने करना है, साकिनैन, ठीक है। चले, फिर उसके बाद हम आते हैं कि वो अल्फाज जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, जब जैसे नसरू, मेनू फॉर एग्जाम्पल, हाँ, या आते हैं आमनू, या हम देखते हैं कानू, या सबरू, या आते हैं हमारे पास, हाँ ये वाले तख्तुमू,
यख्तुमु। यहाँ पर आपने देखा, इस चीज़ को आपको नोट करना है कि कभी कभी एक वाव आता है, ये एक वाव आता है और ये वाव होता है जमे मुज़क्कर का, ये प्लूरल होता है मेल के लिए। कभी कभी ये जो कभी कभी एक वाव आता है और इस वाव के बाद एक अलिफ होता है, ये अलिफ जो है अलिफ फारका इसको कहते हैं, ये एक अलिफ आता है। इस अलिफ को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। कुछ लोगों ने कहा कि ये अलिफ आता है डेकोरेशन के लिए। भाई क्या ज़रूरत है डेकोरेशन की, ये अलिफ फारका है। यहाँ ये बता रहा है कि ये जमे मुज़क्कर यानी बहुत ज़्यादा मेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी जब भी एक वाव आएगा और वो वाव जो है वो प्रोनाउन होगा मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, जम के लिए, प्लूरल के लिए, और उसके बाद एक अलिफ आएगा तो वो अलिफ हम लिखेंगे ज़रूर लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। इसको आपको नोट करना है। हमने माह रमज़ान से पहले तजवीद की उस हद तक आना है कि जो तजवीद हम अच्छे से कुरान को पढ़ सकें, समझ के पढ़ सकें। चलिए, अच्छा फिर इसके बाद हम आते हैं नंबर 4। ये हमारे 3 हो गए। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। अच्छा, नंबर 4 पे हम आते हैं वावे मद्दी। वावे मद्दी, ओके, वावे मद्दी हम ये इन 6 हरूफ में, जैसे हम कहते हैं इन 6 कलमों में या इन 6 लफ्ज़ों के अंदर अगर वावे मद्दी आ जाएगा तो हम उसको लिखेंगे तो सही लेकिन पढ़ेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ऊ, ऊ, ये है ऊला, ऊला है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको, हम इसको कैसे पढ़ेंगे नसीमा पर, इसको हम कैसे पढ़ेंगे नसीमा पर, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये जो हमने कहा, और कभी कभी वावे मद्दी आता है, कुछ 6 अल्फाज ऐसे हैं, 6 अल्फाज हम कहेंगे, 6 अल्फाज ऐसे हैं जिसमें वावे मद्दी आता है, लेकिन वो 6 अल्फाज में वो वावे मद्दी लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले है ऊ, ऊला, फिर है ऊ, लू, फिर है ऊ, लाते। मैं गलत पढ़ रही हूँ, आपको ठीक करना है। उलाते, 1 2 3। फिर आते हैं ऊ, ऊ, ला, ए। इसमें वावे मद्दी आया है 1 2 3 4। हाँ, 6 अल्फाज नहीं बल्कि ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, 6 ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए ना। फिर है उलाइक, उ, ला, इक। फिर है सउरीकुम, सउरीकुम। नसीमा आप हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ, सब पूरे पूरे जैसे ऊला है। देखें वावे मद्दी कुछ हरूफ में वावे मद्दी आता है, ये 6 हरूफ में वावे मद्दी आएगा, लिखा जाएगा वावे मद्दी लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा फकत और फकत पेश जाएगा। जैसे ऊ ला, ऊ लू, ऊ लाते, ऊ लाए, ऊ लाइक, सऊरीकु। हम पढ़ेंगे इसको, हम कैसे पढ़ेंगे? हम कैसे पढ़ेंगे इसको? ये आंटी उला, ये का वाव, वाव नहीं निकले। बहुत अच्छा, वाव निकल जाएगा। हम उलू नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उ।
उला, उलू। उला। बहुत अच्छा, हम पढ़ेंगे उला, उलू, उलाते, उलाए, उलाइका, सउरीकुम। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। मुझे लगता है बहुत तेज बारिश हो रही है ना बाहर, इसलिए बत्ती जो है वो ठरबर हो रही है। कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं सुनाई दे रहा, बहुत तेज नहीं, बारिश है। बारिश इतनी जोर है कि कुछ अभी फिर से करती हूँ। देखिए हमारे पास ये है ना, हम इस उलू है, हम वावे मद्दी को नहीं पढ़ेंगे, हम फकत और फकत इस पेश को पढ़ेंगे। ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे सही लेकिन पढ़ेंगे नहीं। जैसे हम पढ़ेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे उला, हम पढ़ेंगे इसको उलू, या हम उसको पढ़ेंगे उलाते, या हम इसको पढ़ेंगे उलाए, या हम इसको पढ़ेंगे उला ए कर, या हम इसको पढ़ेंगे सउरीकुम। यानी ये जो वावे मदी है इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट हमारे ये हो गए। रोशन आपा, आपको नजर आ रहा है ना? हाँ, तो आप देखो कि यहाँ पर वो हुरूफ जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, तो उसमें हमने मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। दूसरे भी हैं जो अभी मैं करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले सबसे पहले अलिफ, वाव और या जब हमजा की कुर्सी बनते हैं। नंबर 2 अल्फ मद्दी की जब कुर्सी बनती है या और वाव, जैसे हम कहते हैं सलात हो गया, यरजा हो गया। नंबर 3 जब हम आते हैं, जैसे जमे मुज़क्कर के साथ जो अलिफ आता है वाव, जमे मुज़क्कर का जो वाव होता है ना उसके बाद जो अलिफ आता है, जैसे नसरू। और नंबर 4 आते हैं ये 6 हुरूफ जिसमें वाव मद्दी लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसको आपको नोट करना है। फिर हम आते हैं नंबर 5 में। आप क्या कहते हैं, नंबर 5 करें या छोड़ दें? नंबर 5 करें? जी जी जी। पहला जो था जहाँ पर हमजा की कुर्सी थी, है ना? हाँ। और दूसरा जो आपने कहा अल्फ मद्दी। हाँ। और तीसरा जो कहा आपने कि वो वाव के आगे जो अलिफ होता है वो नहीं पढ़ा जाता। जबरदस्त। और चौथा है वावे मद्दी। हाँ बिल्कुल सही। पांचवा हमजा वस्ल जब बीच में करार पाता है। ठीक है, अच्छा मुझे आप सब बताएंगे, जिस चीज को मुश्किल लगती है ना मुझे सब बताएंगे, ऐसे ना हो कि आप सबको मुश्किल लगे मैं बहुत तेजी के साथ भागती हुई जाऊं। आप मुझे बताएंगे। हमारे साथ आज हमारी एक बहन है फातिमा नकवी, मैं नहीं जानती कौन है वो। चले फातिमा बहन, अगर आपको नया लगता है और आपको मुश्किल लगता है तो आप हमें बताइएगा। वैसे भी हम नई क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तेज बारिश हो रही है, सारी आवाज बाहर आ रही। चले, तो यहाँ तक सबके लिए इजी है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं नसरीन हूँ, फातिमा नकवी से आईडी है, पाकिस्तान की नसरीन ज़हरा। हाँ हैदराबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी दिनों ज्वाइन किया है, तो वाकई थोड़ी मुश्किल लग रहा है लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझे समझ में आ जाए। सही सही सही। जो भी आपको ना समझ में आए ना तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी, या फिर हमारे ग्रुप में आप लिखेंगे ना सब आपको बता देंगे। मुझे पता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, फर्स्ट टाइम है ना जी। चलिए, तो यहाँ तक तो इजी है ना? लेकिन सिस्टर नसरीन, जब आपको थोड़ा भी मुश्किल लगे आप मुझे प्राइवेट में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगी जहाँ जहाँ पे भी आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, चलिए। जी जी।
مجھے پتا ہے آپ کو یہ تھوڑا مشکل لگے گا، اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا جمع مذکر کے بعد الف آتا ہے وہ تھوڑا مشکل لگے، کیونکہ وہ گرامر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا. چلے گرامر کی کوئی بک نہیں ہے جو میں لے کر اگر گھر میں بھی پریکٹس کرتی رہوں؟ گرامر کی پریکٹس گھر پہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ گرامر کے لیے ایک ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ گرامر ایک ایسی چیز ہے جو ہم خود سے نہیں کر پاتے، بھلے کتنی بھی بکس ہمارے پاس کیوں نہ ہونا. تو انشاءاللہ ہم لوگ ہیں نا ماہ رمضان کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں، بالکل آپ یوں سوچیں الفابیٹ سے ہم شروع کریں گے اپنی گرامر. تو آپ جوائن ہفتے میں ایک دفعہ ہوگی تو ایزی سے آپ پک کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ چلے جی. نمبر 5 میں آتی ہوں. نمبر 5 ہمارا جو ہے وہ ہے حمزہ وصل. ارے چلے گئے حمزہ وصل. حمزہ وصل جو ہے ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے گرامر تھوڑی سی مشکل ہے ان کو مشکل لگے گا. اچھا نسیم آپا، عظمت آپا، ریلیز آپ لوگ جو مریم اور محدثہ آپا اور طاہرہ بہن، انجم، آپ سب ہے نا، یہ اس چیز کو نوٹ کریے گا. روشن آپا چلی گئی، ابھی بیچاری کی لائٹ چلی گئی. ایک چیز آپ نوٹ کریے گا، جب حمزہ وصل ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ حمزہ وصل جو آتا ہے وہ زیادہ تر فعل امر کے ساتھ بھی آتا ہے. فعل امر کے ساتھ بھی مینس کہ حمزہ وصل فعل امر کے علاوہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم حمزہ وصل کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ لام امر بھی جب بیچ میں آتا ہے. عظمت اب آپ کو یاد ہے نا، آپ نے کتنی دفعہ میں آپ کو بتاتی تھی کہ لام یہ ساکن ہو گیا، وَلْيُؤْمِنُوا، ہر حال میں ایمان لائے وہ لوگ. تو وہ لام جو فعل امر کے لیے آتا ہے، امر کا خاص، اور وہ لام جو امر نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا. بیچ میں جب آتا ہے تو وہ ساکن نہیں ہوتا، شروع میں وہ ساکن ہوتا ہے. تو حمزہ وصل کے ساتھ آپ وہ امر بھی لے آئیے گا جو بیچ میں ساکن ہو جاتا ہے، امر کا، خاص امر کا، ٹھیک ہے، چاہت کا نہیں، یا لام علت نہیں. اس کو ہم نوٹ کریے گا. چلے ہم آتے ہیں لاسٹ میں 5واں نمبر ہمارے پاس ہے حمزہ وصل. حمزہ وصل جنہوں نے گرامر نہیں کی ان کو تھوڑا سا مشکل لگے گا. ہمارے پاس ایک حمزہ ہوتا ہے جو حمزہ فعل امر میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس ہے وہ حمزہ، میں اس کو ایسے سمجھاتی ہوں، ادخلو، ادخلو ایک حمزہ ہوتا ہے جو ساکن ہوتا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس کیونکہ یہاں پر خیر نے پیش لیا ہے، اس لیے ہم اس حمزہ کو پیش دیں گے، ادخلو. لیکن جب یہ حمزہ بیچ میں قرار پاتا ہے، حمزہ وصل وہ حمزہ ہوتا ہے جو شروع میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، لیکن جیسے بیچ میں آئے گا تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. جیسے ادخلو ہے تو ہم اس کو کہیں گے، اگر یہ بیچ میں آتا ہے تو یہ ہو جائے گا میں غلط پڑھتی ہوں یا میں ٹھیک پڑھتی ہوں مجھے بتائیے گا. وَأُدْخُلُوا، غلط پڑھا نا میں نے؟ ہاں بالکل صحیح. یہ حمزہ جب بیچ میں آئے گا تو یہ نہیں پڑھا لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. یہ ہو جائے گا وَادْخُلُوا، لکھیں گے ایسے، شروع میں آئے گا تو ادخلو، لیکن بیچ میں آئے گا تو اس طرح لکھیں گے ایسے، لیکن پڑھیں گے وَادْخُلُوا. تو ہمارا حمزہ وصل، حمزہ وصل جو ہے زیادہ تر جو حمزہ وصل ہوتا ہے اس کو آپ نوٹ کریے گا. حمزہ وصل یا پیش لیتا ہے یا زیر لیتا ہے، زبر کبھی نہیں لیتا. لیکن جب زبر لے گا حمزہ وصل تو پھر وہ حمزہ وصل نہیں ہوگا، وہ حمزہ قط ہوگا. جب حمزہ ہمارا زبر لے گا، اس کو آپ نوٹ کریے گا، جب ہمارا حمزہ زبر لے گا تو وہ حمزہ وصل نہیں ہوگا، وہ حمزہ قط ہوگا. میں اس کو لکھتی ہوں، آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیے گا. ارسلنا، ارسلنا، اوکے. اب میں اس کو لکھتی ہوں ارسلنا، ٹھیک ہے، یا ورسلنا، ٹھیک ہے.
अरसल वो अरसलना ठीक है या वरसलना? अरसलना पक्का? नहीं, वो अरसलना, अलिफ का हमजा पढ़ा जाएगा। अलिफ का हमजा पढ़ा जाएगा। हाँ, क्योंकि साफ साफ पता है कि जो हमजा जबर लेता है वो हमजा हमजाए कत होता है, और जो हमजा पेश या जेर लेगा वो हमजाए वस्ल होता है। हम इस तरह से लिखते हैं, हमजाए वस्ल वस्लुन, और हमजाए कत को हम इस तरह से लिखेंगे, हमजाए कत। कत का मतलब है कत अन पढ़ा जाता है, यानी हर हाल में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमजा वस्ल और हमजा कत। फिर इसके बाद हम आते हैं ये मैं इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको बस इतना काफ़ी है आज के लिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है बाकी हमारे पास 6 और 7 इसमें हुरूफ शमसी भी आ जाएंगे और हुरूफ कमरी भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है। आप क्या कहते हैं, काफ़ी है ना इसके लिए? हाँ। चले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं सूरह आला की। सूरह आला की एक एक आयत हम सब पाठ पढ़ते हैं साथ में। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करें। एक एक आयत सूरह आला। बहुत तेज बारिश हो रही है। चले कहाँ से शुरू करूँ? चले मरियम, आपकी आवाज़ आज बहुत नहीं आ रही, खामोशी है। जी आप वालेकुम सलाम। आपा मुझे वो सूर्य आला का नंबर बता सकती हैं? सूरह आला 30वें सिपारे में है, मैं अभी बताती हूँ। 87। देखा, माशाल्लाह हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है। मरियम थैंक यू। चले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। फिर से मरियम, फिर से बस 2 आयत जी। मरियम फिर से मरियम, मुझे हा की आवाज नहीं आ रही। हा की, हा सब्बिस्म रब्बिकल आला। सब्बिस्म रब्बिकल आला। हाँ, बहुत अच्छा। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। बहुत अच्छा। मरियम, अभी इसमें से जो हमने कायदे पढ़े हैं उसको निकालें। एक तो आपका स्टार्टिंग में अलिफ वाला है। हाँ, ये जो इस्म में हमजा हमजा वस्ल है, हमजा कत है, क्या है? यहाँ पर मेरा शुरू करना मिस हो गया था, मुझे नाम नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। बस हम आज तिलावत करते हैं, फिर सुबह सूरह आला में से जो हमने पढ़ा है ना, ये आपको कायदे कानून 4-5 मैंने आपको कायदे बताए, ये सब आपको ढूंढ के निकाल के लेके आना है। चलें, तो उसके बाद एलिजा। एलिजा आयत नंबर 3 और 4। जी एलिजा, आवाज आ रही है मेरी? एलिजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, मैं मुहद्दिस आपा आप कर लेंगे 3 और 4। जी मुहद्दिस आपा, मेरी आवाज आ रही है आपको?
جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قدر فہدی والذی ہاں اخرج ہاں المرعى مرعى ہاں مہندس صاحبہ اخرج یا اخرج؟ پھر سے اخرج. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. چلیں آیت نمبر 5 اور 6 عظمت آپا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. بہت اچھا ماشاء اللہ. چلیں اچھا روشن آپا اس کے بعد آپ کرو گے آیت نمبر آپ کو ہے 7 اور 8. 7 کافی ہے, ایک کافی ہے 7. روشن آپا آیت نمبر 7. جی 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 بہت اچھا. چلے جی کافی ہے روشن آپا ماشاء اللہ بہت اچھا. جی انجم اس کے بعد آیت نمبر 9 اور 10. بہت اچھا. مجھے آواز نہیں آ رہی کسی کی بھی. روشن آپا مجھے آپ کا بھی کچھ سنا ہی نہیں دیا. چلیے کوئی بات نہیں انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے سب کا ہو گیا نا. طاہرہ بہن آپ کا کرتے ہیں پھر ہم الیزا ہم لوگ آیت نمبر 10 سے ختم ہوئی. طاہرہ بہن آیت نمبر 11 اور 12. اذان ساتھ آ رہی ہے. اوہ اللہ پاکستان میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نا. اذان آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یصلی النار الکبری ہاں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. یہ اس کو پھر سے کریں گے. یحیا. بہت اچھا. الیزا ہم لوگ سورہ اعلیٰ کر رہے ہیں اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر ہم نے کی ہے ابھی 14. ابھی آپ کریں گے آیت نمبر 14 اور 15. الیزا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علیکم السلام. جی آیت نمبر 14 اور 13 ہاں 14 اور 15 الیزا. سورہ اعلیٰ کیا ہے؟ سورہ اعلیٰ کرتے ہیں من. جی سورہ اعلیٰ کر رہے ہیں. ہاں آیت نمبر 14 اور 15. نظر نہیں آتی مجھے. چلے ہم لوگ ملا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 87 سورہ نمبر 87 سوری جی سورہ نمبر 87. ہاں جی یا لیلا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی جی ہاں یہ میرا کتنا تھا جی؟ کتنی آیت؟ آیت نمبر 14 اور 15. 14 اور 15. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں قد افلح من تزکا ہاں وذکر اسم ربہ فصلی. بہت اچھا. نسیم آپا آپ کا ابھی آخری آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا ہاں والآخرۃ خیر وابقیٰ.
बहुत अच्छा, खैरुन व अबका, क्योंकि यहाँ खैरुन में कायदा यरमलून आएगा, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ये कायदा यरमलून। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से। तो आज के लिए हमारा ये काफ़ी है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम लोग, मैं आपका टेस्ट इंशाल्लाह लूँगी नेक्स्ट वीक को, मंडे को। जो हम जितने भी हम मंडे को पढ़ते हैं वो सारी मंडे की चीज़ें हम उस दिन करेंगे, लेकिन जो आज मंगल को हम पढ़ते हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा। मंगल को सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट होगा मंगल का वो बाबे इफ़ाल बाबे तफील। मंगल का जो टेस्ट होगा वो होगा बाबे इफ़ाल और पूरा बाबे इफ़ाल, माजी, मुज़ारे, आमर, मालूम, मजहूल। उसके बाद होगा ये फिर और उसकी माना, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल, इसमें इसका मफ़ऊल मीनिंग के साथ, ये बाबे इफ़ाल और बाबे तफ़ील का सेम होगा। फिर उसके बाद होगा लाजिम और मुतअद्दी। आपको ये याद करना है लाजिम, और मैं आपको कुछ लफ्ज़ दूंगी जिसमें से आपको निकालने होंगे कि लाजिम कौन सा है और मुतअद्दी कौन सा है, ठीक है। चले, ये आज हमारा हो गया। और अज़मत आपा भी है ना, नसीमा आपा, उस दिन कल हमने जो सर्फ किया था फ़ी जो सर्फ होता है ना, फ़ी को जब हम प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं तो फ़ी ही, फ़ी हिमा, फ़ी हिम, फ़ी हा, फ़ी हिमा, फ़ी हिन, फ़ी कर, फ़ी कुमा, फ़ी कुम, फ़ी की, फ़ी कुमा, फ़ी कुन्न। और फ़ी का जो होता है ना मुझ में, तो यूँ अगर जब मेरे में आता है तो फ़ी नफ्सी इस्तेमाल होता है। कल मैं जल्दी में थी तो मैंने नहीं किया। फ़ी नफ्सी 13वां सीखा, फ़ी नफ्सी होता है, और 14वां सीखा होता है फ़ीना। और जैसे रोशन आपा ने बहुत अच्छा सर्व करके मुझे मैसेज में भेजा था, मैं देख रही थी का जो होता है ना, जब हम कहते हैं का, इसके साथ का अंतर, ये जो का है ना, ये जो हमारे प्रोनाउन मुत्तसिल प्रोनाउन के साथ सर्फ नहीं होता, का जो है वो होता है मुनफसिल प्रोनाउन के साथ। इसको आप नोट करिएगा। फ़ी नफ्सी होता है, फ़ी ये नहीं होता कभी भी। तो अब क्या कहते हैं, हम ग्रामर करें या अभी छोड़ तो दें? जो था वो आंटी कहूँ कहा, हमने जो कहा वो नहीं, वो ठीक नहीं है। था। हाँ, कहू सही होता है, कहू सही हो जाएगा। कहूमा ये भी सही है, कहूमा भी सही है। का नहीं होता, का नहीं होता। का अंत बहुत अच्छा रोशन आपा ने सर्व किया था। का अंत, का अंतुमा, का अंतु, का अंति, का अंतुमा, का अंतुन्ना, का अंतु, अंतुन्ना, फिर का अंति, का अंतुमा, का अंतुन्ना, का अना, और फिर का नहनु। सही। चले, अभी हम ग्रामर करें या आज छोड़ दें, क्या कहते हैं आप? बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी आप बैठ कर अगर आपके पास टाइम है तो वो जो मैंने वीडियो भेजे हैं आपको बाबे इफ़ाल तफ़ील के, इसको आप थोड़ा सा रिवीजन करें। जितने भी वीडियोज़ हैं ना उसमें आप रिवीजन करें। अभी आपके पास 1 घंटा है 5 बजे तक, तो ताकि हमारा टेस्ट अच्छा हो जाए। इससे पहले मैं नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें। क्या कहते हैं आप सब? काफ़ी आज के लिए? हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अंजुम बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। इसमें फाइल और इसमें हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इसमें फाइल, इसमें ठीक है। देखें, इसमें फाइल और इसमें मफूल। हम जब इसमें फाइल पढ़ते हैं बाबे इफ़ाल और बाबे तफ़ील का, बाबे इफ़ाल का फ़ेल माज़ी क्या बनता है? अफ़अला। मुज़ारे क्या बनता है? युफ़इलु। बाबे तफ़ील का फ़ेल माज़ी क्या बनता है? फ़ेल माज़ी फ़अला। मुज़ारे क्या बनता है? युफ़इलु। अंजुम, हमारे पास एक कायदा है
کہ جب بھی ہم اس میں فاعل اور اس میں مفعول بناتے ہیں باب کا تو ہم کیا کرتے ہیں جو یا ہوتی ہے نا کیونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس کو آپ نوٹ کریے گا اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہوتے ہیں وہ ورب نہیں ہوتے وہ ناؤن ہوتے اور تنوین اور الف لام ناؤن کی پراپرٹی ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام بھی آئے گا تنوین بھی آئے گی اور حرف جر بھی آئیں گے ٹھیک ہے لیکن جب ہم ورب کہتے ہیں کسی فعل کو کہتے ہیں تو فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آئے گا تنوین بھی نہیں آئے گی اور اس کے اوپر حرف جر بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو جب ہم اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنائیں گے باب کا تو جب اس میں مفعول اور اس میں فاعل ہوگا تو یہ جو یا ہوتی ہے نا یہ جو ہم کہتے ہیں علامت مضارع کی جگہ پر اس کو ہٹا کر ہم ایک میم رکھ دیں گے میم اور وہ میم پیش والا ہو جائے گا یہ اور باقی جو لن کر دیں گے آخر سے تنوین دے دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ ہمارا اگر زیر لے گا تو ہو جائے گا اس میں فاعل اور اگر زبر لے گا تو ہو جائے گا اس میں مفعول جیسے ابھی میں کہتی ہوں یس میں او وہ ایک مرد سنا رہا ہے نہیں یس میں او سن رہا یس میں او سنا رہا ہے اوکے وہ ایک مرد سنا رہا ہے تو جب ہم اس کو میم کر دیں گے نا مسمعن سنانے والا ایک مرد اوکے سنانے والا ایک مرد مسمعن سننے والا ایک مرد ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو کرتے ہیں سامعن بھی یہاں آتا ہے سننے والا اور مسموع مفعول کی وجہ مسموع جس کو سنا جا رہا ہے اوکے یہاں پر یہ مسمعن اور مسمع اور اسی طریقے سے بالکل ہم باب تفعیل میں جب آتے ہیں نا تو باب تفعیل کو بھی ہم بناتے ہیں وہی یا کی جگہ پر ہم ایک میم دے دیں گے اور وہ میم پیش والا ہوگا اور آخر میں تنوین دے دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ کو جب زیر دیں گے تو اس میں فاعل ہو جائے گا اور زبر دیں گے تو اس میں مفعول ہو جائے گا ہاں ابھی اس کو کرتی ہوں میں جیسے ہم کہتے ہیں نزل ینزل فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک لفظ ہے ینزل وہ ایک مرد اتار رہا ہے بہت بار بار اتار رہا ہے ہم اس کو میم کر دیں گے منزل نازل کرنے والا اتارنے والا ایک مرد منزل جس کو اتارا جا رہا ہے وہ ایک مرد کلیئر انجم کلیئر ہو ٹھیک ہے اور کچھ اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ بتا دیں پھر ہم اس کو ختم کر دیں اور پھر آپ بیٹھ کر انجم مفعول کا میننگ جس کو اتارا گیا ہے ہاں جس کو اتارا گیا یا جس کو اتارا جا رہا ہے یا جس کو اتارا گیا اچھا ایک اور چیز جو آپ نوٹ کریں گے بہت اچھا نسیم آپ نے مجھے یاد دلایا جب بھی آپ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں ایک جھلک آتی ہے فعل مضارع کی اور اس میں فاعل کے اندر جو ایک جھلک آتی ہے فعل مضارع معلوم کی اور جو مفعول ہے اس کے اندر ایک جھلک آتی ہے فعل مضارع مجہول کی بہت اچھا نسیم آپا نے مجھے یاد دلایا تو جس کو اتارا جا رہا ہے منزل جس کو اتارا جا رہا ہے وہی مجہول کی مجہول ہوتا نہیں ہے لیکن جھلک مجہول کی آتی ہے کیونکہ مجہول ہمیشہ مفعول رکھتا ہے فاعل نہیں رکھتا لیکن مفعول رکھتا ہے اور اس میں مفعول بھی مفعول ہی ہے بھائی تو کلیئر ہوا نے انجی آپ یہ کو ساتھ کیا تھا نا یہ آپ لکھ سکتے ہیں ہم کو پیچھے یہ میں حرف جر کے ساتھ کیا تھا نا کل ہاں کہو میں بھیجوں لکھ کے بھیجوں ہاں ٹھیک چلے میں لکھ کے ابھی لکھوں یا پھر گروپ میں بھیجوں نے فی کو کیا کیا آپ نے ہاں فی نفسی ہوگا فی نفسی کبھی بھی فی ہاں
कभी भी फी ये नहीं होता, फी नफ्सी होता है। हमेशा जब भी आप फी को सर्व करोगे ना, फी हिमा, मैं सर्व करती हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है? आप इसको नोट करिएगा। फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्न, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना, फी नफ्सी, फीना। सही? फी नफ्सी और फीना, ये इस तरह से होगा। कहू, कहूमा, कहूम, कही, कहा, सॉरी, कहूमा, कहून्ना, का अंतर, का अंतुमा, का अंतुम, का अंति, का अंतुमा, का अंतुन्ना, का अना, का नहनु। चलिए, ये का है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इंशाल्लाह फिर जब हम, मुझे वो था, मुझसे गलती होगी कि कल मैंने आपको ये करवाया, लेकिन इंशाल्लाह जब हम मिया तो आमिल में आएंगे ना, ये जो आमिल पढ़ेंगे उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, और कुछ रहता है सवाल तो मुझे आप बताएं तो मैं क्लियर कर दूं, फिर एग्जाम में टेस्ट। तेरमासी का क्या था आंटी? फी नफ्सी, का अना, का नहनु। करना। अच्छा, एक और चीज देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, तेर में का अन्ना ने कुछ करना है का अना। देखिए, एक चीज और नोट करिएगा, रोशनापा आप भी सब भी देखिए, का जो है ना, मैंने आपको कहा का ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता। अगर आप कहते हैं मेरे जैसा तो मिसलुका आता है, मिसलुकुमा होता है, ठीक है ना, मिसली होता है, मिसलुना होता है, तो वहां पर का इस्तेमाल नहीं होता। का मैंने इसलिए इस्तेमाल करवाया क्योंकि हुरूफ जर के साथ, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ज्यादातर का जो है वो ज़मीर के साथ नहीं आता। सही? बाकी अगर आपको उसके जैसा करना होता है तो हम कहते हैं का मिसलू का। और अगर मुझे फिर वही मुझे का लाना होता है का मिसलू का, फिर हम कहते हैं का को अगर लाना है तो फिर मिसलू को बीच में लाना पड़ेगा। सही? तो फिलहाल हम का को छोड़ देते हैं, और अगर का को आपको करना है तो या तो बीच में मिसल लेकर आए, का मिसलू का, या तो फिर इस का को फिलहाल छोड़ दें। ठीक है? कल की वीडियो भेजिएगा प्लीज। हाँ, मैं अभी कल वाली हूँ ना, वो हो गई है, मैंने कर दी है, मैं आपको भेजती हूँ। और मैं अपनी मजलिस की वीडियो भेजूंगी सिर्फ हमारे ग्रुप वालों के लिए। जी। अच्छा, टेस्ट का आप कब कह रही थी? मंडे और ट्यूसडे को, नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह। ट्यूसडे को ना, मैं तो मंडे को शामिल नहीं हो सकती। तो तायरा में मैं आपके साथ मंडे को सुबह ना क्लास, मंडे को सुबह को होती है हमारी क्लास। हाँ, देखिए पाकिस्तानी मुझे लगता है 12 सवा 12 हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए नहीं पॉसिबल। हाँ, मैं समझती वरना तो मैं जरूर शामिल होती। हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से भेज दूंगी, तो फिर आप कर दीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। चलिए, और ये जो सॉरी आपा, जी अंजू, बिस्मिल्लाह। ये जो बाबे तफसील का मजबूल होगा, हाँ, इसका हम तर्जुमा ही बनाएंगे, तो एक एग्जांपल दे दें। क्या बनाएंगे, मैं नहीं समझी। बाबे तफसील में जो मजबूल बनाएंगे, हाँ, तो उसको हम कैसे तर्जुमा किस तरह करेंगे जरा? सर्व कैसे करेंगे? हाँ, ये सब नीचे से दीदी को एक लफ्ज का सब कहते हैं, फिर माजी फिर मुजारे, और दोनों का एक एक चले। ये अमर में भी आएगा। हाँ, पहले अमर में भी, पहले अमर मजहूर भी होता है, तीनों होते हैं। अच्छा, हमने कहा है कि पहले मजहूर का जो वजन होता है वो होता है फ़ुइल, और पहले मुज़ारे में जो पहले मजहूर का वजन होता है वो युफ़अलु होता है, युफ़अलु। अलामत मुज़ारे पेश लेती है, सेकंड लास्ट हमेशा ज़बर लेता है। और हमें पता है कि बाबे इफ़आल और बाबे तफ़ईल, बाबे इफ़आल का होता है अफ़अल फ़िल माज़ी, और बाबे तफ़ईल का है फ़अल। इसका मुज़ारे बनता है युफ़इलु, सेकंड लास्ट ज़ेर लेता है, फ़र्क इतना है। और इसका जो पहले मुज़ारे बनता है युफ़इलु हो जाता है।
सेकंड लास्ट ज़ेर। हमारे पास एक कायदा है, इसको आप नोट करिएगा कि फ़ेल मजहूल का ये कायदा है, हम सबको नोट करना है कि फ़ेल मजहूल का आखिर का जो हर्फ होता है या आखिर का जो रूट वर्ड्स में से होता है वो हमेशा ज़बर लेगा। सेकंड लास्ट फ़ेल माजी में ज़ेर लेता है, और ये जो सेकंड लास्ट है इससे पहले जितने भी मुतहर्रिक अल्फाज होंगे वो पेश लेगा। साकिन नहीं, साकिन ही रहेगा, लेकिन जितने मुतहर्रिक होंगे ना वो पेश लेगा। अभी यहाँ पर हम आते हैं, इसको हमने मजहूल बनाना है। साकिन अपनी जगह पर साकिन रहेगा, उसको हम हिला भी नहीं सकते। लास्ट ने क्या किया है, ज़बर ली है, सेकंड लास्ट को हम ज़ेर दे देंगे और बाकी जितने भी मुतहर्रिक होंगे उनको पेश देंगे, तो फ़ेल मजहूल हो जाएगा उफ़इलू, ये फ़ेल माजी हो जाएगा। और यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमें पता है क्या हो जाएगा, फ़ुइला, क्लियर। और यहाँ तो बिल्कुल आसान, सेकंड लास्ट को हमने ज़बर दे देनी है, ये हमारा बन गया फ़ेल मजहूल। क्लियर अंजू? तो जैसे जब समा आपका करें हम, अगर तो मैं तर्जुमा जिस तरह कोई भी एक लफ्ज़ को सर्च करना हो, इसका तर्जुमा जरा करना मुश्किल हो रहा था। चलिए, अस्मा, युस्मिउ। अच्छा, एक और लफ्ज़ आप देखिए, समेअतु। समेअतु जो है वो हमारे पास ये लाजिम लफ्ज़ है, आपको पता है ना। समेअतु मैंने सुना, बात ख़त्म, मैंने सुना तुम्हें, मैंने सुना। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ में आते हैं, अस्मा, सुनाया था उस एक मर्द ने, और जब हम इसको कर देंगे उस में तो हो जाएगा सुनाया था उस एक मर्द ने। यहाँ हम कर देंगे कि सुनाया, ऐसे करेंगे, सुनाया था एक मर्द ने, फिर यहाँ अस्मा सुनवाया गया, सुनवाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें तफ़ईल, बाबे तफ़ईल में भी यही हो जाएगा, सुनवाया गया, सुनवाया जा रहा है। क्लियर अंजू? मैं आपको लफ्ज़ देकर उनकी मीनिंग नहीं कहूँगी कि ये जो लफ्ज़ है इसकी मैं बाबे तफ़ील में या बाबे इफ़ाल में लफ्ज़ों को डालकर फिर आपको नहीं कहूँगी कि इसकी मीनिंग करो, क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किल है। बस मैं आपको तो अल्लाह, एक बिजली का कड़ाका इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क़यामत का मंजर कैसे बर्दाश्त करेंगे। चलिए, इंसान इतना कमज़ोर है कि एक झटका नहीं बर्दाश्त होता और पंगा लेता है अल्लाह से। चले, तो अंजुम, बस मैं आपको ये पूछूंगी, बाबे इफ़ाल की कितनी मीनिंग है, तफ़ील की कितनी मीनिंग है? काफ़ी है आज के लिए, या एक और सवाल हो तो हम कर लेते हैं। अगर कुछ सवाल वगैरह है, रोशन आपा कुछ है तो आप बताइए। कुछ भी नहीं है? चलिए, फिर हम एक सवाल पढ़ते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व मुहम्मद व अज्जिल फरजा। खुदाया पाक परवरदिगार या अल्लाह, हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदा, हमारे तमाम गुनाह ने कभी और सभी को माफ़ फरमा। या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, हम अपने दर्स का सवाब देते हैं 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को, वहाँ से
سے جو ثواب ملے وہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرحومین کو عطا فرما. اور اے اللہ اس قرآن کے صدقے میں ہمیں ہمیشہ اس قرآن کے اوپر قائم اور دائم رکھ. خدا ابھی تک تم نے ہمیں توفیق دی ہے اس قرآن کے ساتھ جڑ کے رہنے کی، آگے بھی توفیق عطا فرما کہ ہم جڑ کے رہیں. اور اے اللہ ہم جتنی بھی ہم مائیں ہیں اپنی اولادوں کے حق میں جو دعا کرتے ہیں، ہماری اولادوں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور اے اللہ ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد فرما، ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما. اللہ حافظ.